Sure. So, hello, my dear student. Welcome to the chemistry classes. Okay. So here we are going to discuss the one important chapter, that is periodic table. Okay. So first of all, discuss some important facts. That is, first of all, we are going to discuss the some important facts that is some historical development of periodic table. So historical development of periodic table. Okay, so first one is that historical development. So first one that gives the Lavoisier. Okay, so Lavoisier is a scientist which gave the first theory about the periodic table. That is, so we write as Lavoisier. Yeah. Okay, so Lavoisier, what it gives, it gives the, okay, Lavoisier say that इसने ये बोला कि Lavoisier show भी known element divided into two parts. Known element divided into two groups two groups two groups. Okay, so first one, that is the metal, and second one is non-metal. Okay, but this one is failed because metallurgy is also discovered, so it is rejected. This law is, we can say that is drawback is that मेट्रोलाइज इज ही इसने मेट्रोलाइट के बारे में कुछ नहीं बताया था. सो यहाँ पे क्या है आपका, इसका रिजेक्शन हो गया क्योंकि क्या है, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेट्रोलाइट. सो वी कैन राइट दैट it is rejected after the discovery of मेटेलाइट. ओके, सो मेटेलाइट के डिस्कवरी के बाद इसको क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया. ठीक है. सो इसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए थे उसने दिया था डोवेर्नियर लॉ ऑफ ट्रैड्स. ओके, सी नेक्स्ट वन इज दैट डोवेर्नियर लॉ ऑफ ट्रैड्स. सो सेकेंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या है आपका, सेकेंड वन इज डोवेर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स. सो ट्राइड्स से आपको समझ में शायद थोड़ी बहुत आ रही होगी. ट्राइड्स मतलब क्या होता है, तीन. ओके, सो डोवेर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स ने तीन के लिए दिया था. ठीक है, क्या था वो, सबसे पहले आप स्टेटमेंट देखो. वो स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट ये था, ठीक है, कि ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट ट्राइड्स. ओके, सो इसका स्टेटमेंट क्या था आपका, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द मीनिंग ऑफ ट्राइड्स. सो ट्राइड्स मतलब क्या था, यहाँ पे ट्राइड्स मतलब ये था. ओके, सो ट्राइड्स मतलब ये था ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स having okay, so group of three elements having similar physical and chemical properties. So triads, that mean a group of three elements having similar physical and chemical property. Okay, so this one be called as a triads. Okay, so what is the meaning of Dauvergne law of triads? Okay, so Dauvergne law of triads, it will says that, so statement of Dauvergne law of triads, that is see the statement that is average. Okay, so atomic mass of, so
atomic mass of, okay, we write that arrange the element in a group, arrange the elements, okay, so arrange the elements in a group of in a group of three such atomic mass, in a group of three such atomic mass, okay, of middle is average of atomic mass of middle is average of atomic mass of other two elements, okay, other two elements, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये कि मिडिल टर्म्स का जो एवरेज है वो दूसरे एलिमेंट का मिडिल। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते, सपोज करो यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ ए ट्राइड्स में हम लोग लिखने जा रहे हैं सी, यहाँ पे अब इसको हम लोग एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एलिमेंट ऑफ ए ट्राइड्स, ठीक है, मेरे पास तीन एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट ऑफ ट्राइड, एलिमेंट्स, ठीक है, मेरे पास एलिमेंट्स ऑफ ट्राइड तीन एलिमेंट मेरे पास है, ठीक है। सो तीन एलिमेंट है, एक का नाम क्या है ए, ओके, सो एक का क्या नाम है आपका ए, दूसरे का नाम है बी, तीसरे का नाम सी, ओके। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या कर रहा है, एटॉमिक मास, तीन एलिमेंट है तो इसमें एटॉमिक मास ऑफ बी, मिडिल वाले का एटॉमिक मास, ओके, atomic mass of B is average of other two, so we can write as atomic mass of A plus atomic mass of C, atomic mass of A and atomic mass of C upon 2, so this one is the statement of Dubinian law of triads, okay, so Dubinian law of triads, okay, so you take the example of arrange in a way that is, take the example, that example we have a lithium, sodium and potassium, okay, lithium, sodium and potassium, okay, so you will see the mass of B, right, you know the mass, so you remember the mass, आप mass को याद करना पड़ेगा, तो लिथियम का यहाँ पे मास मैंने कितना लिया 7, सोडियम का मास आपको पता है कितना होता है 23, ठीक है, और पोटेशियम का मास कितना होता है 39, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप एवरेज निकालोगे, डोवेनियर्स ने क्या किया, एवरेज किसका, मिडिल वाले का, तो हम क्या लिखेंगे, एवरेज मिडिल वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, सो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास ऑफ, एटॉमिक मास बताओ, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, ओके, सो बीच वाले का किसके बराबर, एवरेज किसका होगा, लिथियम और सोडियम का, सो एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ, सॉरी सोडियम नॉट पोटेशियम, ओके, ये पोटेशियम, ओके, सो एटॉमिक मास ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सब कुछ आपको दे रखा है, एटॉमिक मास सोडियम में कितना है 23, इसका देखो दोनों इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा है, एटॉमिक मास लिथियम का 7, एटॉमिक मास पोटेशियम का 39, तो 7 प्लस 39 अपॉन 2 दैट इज अप्रॉक्स 23, सो ये 23 क्या है आपका बराबर, तो इसका मतलब ये डोवेनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। बट इसका ड्रॉबैक क्या हो गया, ये लिमिटेड अप टू 20 एटॉमिक नंबर तक ही वैलिड हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका इसका ड्रॉबैक क्या हो गया, ड्रॉबैक valid up to only limited
ट्रैट्स। ओके, सो वैलिड कहाँ तक है? केवल लिमिटेड ट्रैट्स के लिए, जिसके कारण इसको क्या हो गया आपका फेल्योर हो गया। ठीक है, जब ये फेल्योर हो गया तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या था? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो थर्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सो थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या है आपका, थर्ड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव से शायद समझ में आ रहा होगा आपको, 8 होता है। ठीक है, सो इसने बोला कि अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ओके, सो इसने क्या बोला? सो इसका स्टेटमेंट मैं लिखता हूं, यहां देखो आप लोग, अरेंज द एलिमेंट okay, so arrange the element in increasing order of atomic mass, increasing order of atomic mass, then every eighth element, every eighth element has similar property, every eighth element has a similar property to that of first element, has similar properties to that of first one। ओके, सो ये बोल कह रहा है आपका, देखो अच्छे समझो, अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर ऑफ एटॉमिक मास। तो एलिमेंट को अरेंज करना है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, सो दैट कि एवरी एट्थ एलिमेंट हैज अ सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ फर्स्ट वन। तो जितने भी एट्थ एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी क्या हो जाए? सिमिलर हो जाए किसके? फर्स्ट के। ठीक है, लेट्स सी। सो इसने क्या बोला कि अरेंज करो एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, सो एवरी एट्थ एलिमेंट, सो एट्थ एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर हो किससे? फर्स्ट से। सपोज करो आप फर्स्ट और सेकेंड के बात को, तो सेकेंड में क्या आता है? लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम हो गया, ये सब का प्रॉपर्टी क्या आपका? देखो एक ग्रुप में आता नहीं आता? लिथियम, सो मैं हिंट देता हूँ, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, है ना, पोटेशियम हो गया, तो ये सब क्या आ रहा है आपका? सेम आ रहा है ना, है ना, सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हो रहा है। ठीक है, उसी तरह मुझे क्या करना है? यहाँ पे अरेंज करना। ठीक है, मैं अरेंज करता हूँ। देखो, तो इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसके अकॉर्डिंग बताया? सारे गामा के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप यहाँ लिखो सा रे गा मा पा दा धा नी। देखो 1 2 3 4 5 6 नी सा, सा रे गा मा पा दा नी सा। देखो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, जो फर्स्ट एलिमेंट है, ओके, और जो एलिमेंट है, दोनों का प्रॉपर्टी क्या है? सेम। मुझे पता है एक ग्रुप में सबका प्रॉपर्टी क्या होता है? सेम होता है, तो दिस वन इज द ग्रुप, तो इसमें प्रॉपर्टी सेम होता है। ठीक है, अब इससे देखो एलिमेंट को कैसे डिस्क्राइब किया, तो आप यहाँ लिखो लिथियम। ठीक है, यहाँ पे फिर से आप स्टार्ट करके यहाँ लिखो आप लिथियम। सो ये क्या हो गया आपका? लिथियम सा। लिथियम के बाद क्या होता है? बैरिलियम, Be। ओके, लिथियम बैरिलियम के बाद क्या होता है आपका? बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियोन, नोबेल गैस उस समय नहीं आया था, इसलिए फ्लोरीन के बाद क्या था आपका? सोडियम। ओके, सो क्या था आपका? सोडियम। देखो, तो यहां से आपका सा से स्टार्ट हुआ, सा, और रिपीट कहां तक गया? सा तक। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखो एट्थ एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट दिस वन, and you see the eighth element, both are at the same, 1 2 3 4 5 6 7 8, so both are the same, so this one is the Newland law of octave। so ये सब क्या आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अच्छे समझ में आ गया? याद रखना,
जहां भी न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आ जाए, याद रखना वहां कहां से स्टार्ट हो रही है, सारे गामा से, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी किससे सिमिलर हो जाना चाहिए, एट्थ एलिमेंट से, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो बैकग्राउंड था, जो पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट आया, वो किसने किया आपका, ठीक है, वो किसने किया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो हम लोग डिस्कस करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट जो मुझे लॉ पढ़ना है वो आपका क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ओके, सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो था वो एक्चुअली क्या कह रहा था, सबसे पहले उसका स्टेटमेंट, व्हाट इज द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ठीक है, देखो क्या है, वो ये बोल रहा था मेंडलीव पीरियोडिक ने, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज physical and chemical properties of the elements okay, so of the elements are periodic function of, so you can write here are periodic, okay, periodic function, okay, so it is the periodic function of atomic mass, so it is a periodic function of atomic mass। इस चीज को आप याद रखना कि मेंडलीव ने जो था उसने क्या बताया था, किस बेसिस पे लिया था, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, वो मेंडलीव का सबसे बड़ा था कि उसने क्या बताया, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी कोई भी एलिमेंट्स का उस किसके बेसिस पे होगा, उसका फिजिकल पीरियोडिक फंक्शन देयर एटॉमिक मास। ओके, सो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द, सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको पूछनी चाहिए, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, लेकिन आप लोगों ने पूछ नहीं रहे हो। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, रिटर्निंग ऑफ सिमिलर property at regular interval, okay, so means similar properties at regular interval, so we write here at similar properties, okay, similar properties at regular interval, at regular interval, ओके, सो ये हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट इसने एक दो पॉइंट ये बताया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। क्या बताया, उस टाइम मेंडलीव ने क्या किया था, जो भी नॉन एलिमेंट नहीं थे, ठीक है, जो एलिमेंट के बारे में हम नहीं जान रहे थे उसके बारे में उसने सबसे ज्यादा अचीवमेंट क्या था, आपसे पूछेगा व्हाट वाज द अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट मेंडलीव का क्या था, तो मेंडलीव ने क्या किया था, सबसे जो एलिमेंट नोन नहीं थे उसके लिए उसने स्पेस छोड़ दिया था। जैसे देखो आप, सो क्या लिखोगे वहां पे, उसने क्या किया, स्पेस छोड़ दिया। ठीक है, सपोज करो आप एग्जांपल लो, जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम है ना, क्या आता है एल्यूमिनियम, सो यहाँ पे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम है ना, तो एल्यूमिनियम के, है ना, सो बेटो एल्युमिनियम के नीचे कोई एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं हुआ था उसके लिए उसका नाम क्या दे दिया था उसने, एका, क्या डाला था उसने, एका एल्युमिनियम। ठीक है, एका एल्यूमिनियम, ओके, सो इसका नाम क्या डाला था इसने, एका एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, जब उसके बाद यहाँ पे वो एलिमेंट एग्जिस्ट किया तो उसका नाम क्या बन गया, गैलियम। क्या हो गया वो, क्या हो गया वो एलिमेंट का नाम क्या हो गया, गैलियम। ठीक है, गैलियम, ओके, सो गैलियम इसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं, Ga से। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि जब ये स्पेस हो रहा था तो उस स्पेस पे जो आया था उसका सिमिलर प्रॉपर्टी था जो एल्युमिनियम का था। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इसका क्या था आपका
एडवांटेज था, ठीक है। एक और इसका एग्जांपल है, 2-3 एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट वन था, एल्युमिनियम ले लिया। दूसरा हमने एक और देख लो, बोरोन। ओके, सो बोरोन से क्या था, एक का बोरोन से क्या इसने जनरेट किया, ओके बोरोन से एक का बोरोन, ओके, सो एक का बोरोन, बोरोन की जगह पे इसने क्या छोड़ दिया था जगह, एक का बोरोन, ओके। सो इसकी जगह पे क्या आया था आपका Hc, ओके। उसी तरह उसने क्या किया था, ठीक है। तो उसी तरह थर्ड भी प्रॉपर्टी जान लो। थर्ड क्या आपका क्या क्या था, जर्मीनियम। जर्मीनियम कैसे आया था, जब उसने जगह पे क्या छोड़ा था, ये एक का सिलिकॉन, क्या छोड़ा था आपने, एक का सिलिकॉन। उस एक का सिलिकॉन से क्या आया था यहाँ पे, Ga, ओके, जर्मेनियम, ठीक है। तो ये क्या है आपका मेंडलीव का सबसे बड़ा अचीवमेंट। और आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, मेंडलीव, माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस पे बेस है, तो क्या बताओगे, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास पूछेगा। इसका एडवांटेज क्या है, तो क्या बोला कि किसने क्या किया था, स्पेस छोड़ा था, उसकी जगह पे क्या डाला था, एक का वर्ड डाला था, ठीक है। और जब जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उसके बाद देखा कि उसका प्रॉपर्टी सिमिलर क्या था, इसके जैसे था, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग मेंडलीव के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आजकल मॉडर्न ही चल रहा है, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट डिस्कवर करने जा रहे हैं, वो है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो नेक्स्ट वन इज आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहना चाह रहा है वो समझो अच्छे से आप, ठीक है। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था, है ना, सो एक मोस्ले साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो फादर थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, उसका नाम क्या था आपका, हेनरी मोस्ले। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने किसने किसने दिया था, उसका क्या नाम था, हेनरी मोस्ले, ठीक है। So my dear students, show modern periodic table that will given by the Henry Moseley. So यहाँ पे आप लिख सकते हो Henry Moseley, ओके। सो Henry Moseley ने क्या दिया था आपका, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्टेटमेंट क्या है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सो इसने क्या बताया था, इसने ये बोला था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सो यहाँ पे मैं राइट डाउन करता हूँ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज so physical and chemical properties of elements of physical and chemical properties of elements, okay, physical and chemical properties of elements are periodic function of so we write here periodic function, so are periodic function of their, so यहाँ पे आप लिख सकते हो are periodic function of atomic number, ओके। सो ये क्या बताया था, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो आपसे कोई भी डिफरेंस पूछे मेंडलीव और मॉडर्न के बीच में, क्या बताओगे, तो मेंडलीव ने पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास से बताया था और मॉडर्न ने पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर में बताया था। ये सबसे बेसिक्स डिफरेंस है, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने क्या बताया था, और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग मॉडर्न के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल था उसने और क्या बताया था, ठीक है, हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। सो इसने क्या बताया था, नंबर ऑफ, ठीक है, इसने बोला था नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम। सो वर्टिकल कॉलम जो होगा, नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम, आप लोग जानते हैं कॉलम क्या होता है, ओके। सो नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम, इसने क्या बताया, नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम, ठीक है। इसने क्या बोला, नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम, सो नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम इज 18, ओके। सो कॉलम कितना होगा, 18। कॉलम मतलब ये जो होती है ना, ये कॉलम, वर्टिकल कॉलम कितना होगा, इसने क्या बताया, 18 वर्टिकल कॉलम होगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन कितना होगा, 7, ठीक है।
तो उसने इंफॉर्मेशन दिया, मॉडर्न ने ये बताया नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन। ओके, सो हॉरिजेंटल लाइन जो होगा वो आपका कितना हॉरिजेंटल लाइन होगा, वो हॉरिजेंटल लाइन कितना होगा 7। ठीक है, अब देखो इसने क्लासिफाई कैसे किया वर्टिकल कॉलम को 18। देखो इसने क्या नेम दिया, जो आपका 18 है, सपोज करो यहां से लेके चलो 1 से 18 तक लिखते हैं हम लोग। सो यहाँ पे इसने क्या किया, देखो यहाँ पे इसने किया क्या, ठीक है, 18 हॉरिजेंटल लेते हो तो ये देखो आपका 1 है। ठीक है, दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8। ठीक है, इसने 18 नाम दिया, और 18 को जैसे 1 है ना, तो 1 का नाम क्या था, 1A। शायद आप लोग जानते होंगे दिस इज अल्कली, अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड अल्कली अर्थ मेटल। तो 1 का नाम क्या दिया, ये 1A। उसी तरह 2 का नाम क्या दिया, वो रोमन में 2A। ठीक है, 3 का नाम क्या दिया, ये 3B हो गया। ठीक है, ये दूसरे ग्रुप पे स्टार्ट होती है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। 3B। 4 का नाम क्या दिया इसने, 4B। उसी तरह 5B 6B 7B 8B। ओके, सो यहाँ से 9B 10B स्टार्ट हुए। ठीक है, सो उसी तरह 10 यहाँ तक तो आ गया आपका 10B है ना। 5B के बाद कहाँ तक आ गया, ये 10B हो गया। उसके बाद यहाँ से जो 11th स्टार्ट होता है, 11 को यहाँ से क्या स्टार्ट किया, 7 8 तक। ठीक है, उसके बाद 11th को क्या इसने दिया, 1B। ओके, फिर 2B। सो ये दूसरे ग्रुप पे स्टार्ट है, तो इसको क्या किया इसने, 1B। ओके, सो फिर यहाँ पे इसने क्या दिया इसको, 2B 12। 13 ग्रुप को क्या दिया इसने, 3A 4A 5A। ओके, सो 1B के बाद इसने क्या दिया यहाँ पे, 2B। ओके, 13 को क्या दिया इसने, 3A। 14 को क्या दिया इसने, ओके, सो 4A 5A 6A। ओके, 6A that is 7A। ओके, सो ये इसने बताया कैसे इसको अरेंज करना। तो ये अभी आपको नहीं जानना, बस जैसे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे वो आप लोग जान लोगे। ठीक है, तो इसने इसी तरह बताया कितने वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम कितने 18। उसी तरह इसने क्या बताया, हॉरिजेंटल लाइन को बताया। तो हॉरिजेंटल लाइन कितना है, 7, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड। सो टोटल पीरियड कितना होता है, 7 पीरियड होता है। तो यहाँ पे लिखो आप, सो यहाँ पे आप लोग राइट डाउन तो वन थिंग दैट इज 7 पीरियड। ओके, तो ये जनरली क्या है आपका 7। तो यहाँ पे क्या होता है आपका 7 पीरियड होता है। ठीक है, 7 पीरियड एंड 8